Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. King of glory, we bless your holy name. We magnify you, Lord Jesus. Hallelujah. Shalom, shalom. Thank you, Jesus. Jesus, we bless you. Hallelujah. Lord, we magnify you. Brother Lalit ji, Jai Yeshu Masih ki. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Brother Lalit ji, Jai Masih ki. Ravi Prakash Gupta ji, Jai Yeshu Masih ki. Amarjeet Kaur ji from Jalandhar, Jai Prabhu Yeshu Masih ki. Just sipping a little bit green tea along with. Hallelujah. Sabi Surjit ji, Jai Yeshu Masih ki. Hallelujah. Gurpreet Singh ji, Jai Yeshu Masih ki. Bless you, Lord. We glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom Alachim. Shalom. Jai Masih ki. Prabdeep. Hallelujah. Lord, we bless your name. Raj bin Palke ji, Jai Yeshu Masih ki. Amrish Kumar ji, the Lord bless you. Shalom. Hallelujah. Emmanuel Sohota ji, Jai Masih ki. I hope you are doing well and your wife, your children are doing well. Sohota ji, we are planning a trip for ministry. If you will have time, you can kindly come and we can go together. Thank you, Jesus. Vanita Chopra ji from Australia, the Lord bless you. Hallelujah. Shalom. Praise the name of the Lord. Jesus of Nazareth, we bless you. Lord, we give you praise and glory and honor tonight. We exalt you. Lord, we acknowledge your domain, your kingship over our lives. Lord, we give our body to you, spirit and soul to you, Lord Jesus. Lord, everything that we are, everything that we have, we lay at the foot of the cross, Lord. Hallelujah. Tera dhanyavad ho. Lord, we bless you. We bless you, bless you, bless you, bless you. Lord, we praise you. Hallelujah. Open your mouth, everyone, and begin to bless the Lord. Just begin to praise him. Lord, we praise you. Psalmists say unto the Lord, Lord, we will offer unto you the calves of our lips. The calves of our lips. The writer of Hebrews says, let us offer unto the Lord the thanksgiving. Let us offer unto the Lord the sacrifice of praise, gratitude and appreciation. Hallelujah. Prabhu ka dhanyavad kare. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you. Bless you, Lord. Hallelujah. तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। अंगूर की बेल से पैवस्ता हर डाली
सावन हो जाए। अंगूर की बेल से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु। Thank you, Lord. Jesus, we magnify your name. We exalt you, King of glory. We invite your presence. Lord, I ask that the blood of the Lamb will be unleashed over this telecast, that the blood of the Lamb will protect each word that will be spoken, that the word of the Lamb will carry forward the message right into the hearts of your people. For you will speak, Lord, not the man. You, your divine will, your divine purposes will be accomplished. I pray, Father, touch everyone tonight. I bring Shalu Gaba before your throne of grace. I bring Amarjit Kaur before your throne of grace. I pray for Inderpreet Singh. I bring him before your throne of grace. I bring Sanita Carol James before your throne of grace. Lord, I bring Karamjit Kaur before your throne of grace. Davinder Singh, I lift him up before your throne of grace. Prabdeep and his household. Harpal Singh Bajwa. Lord, I bring Simon Aman Sidhu before your throne of grace. I bring Amrish Kumar before your throne of grace, Lord. For Davinder Singh from Jammu, I bring him before your throne of grace. Raj bin Palke. Emmanuel Sahota and his household, Lord, bring before your throne of grace. I pray for Edward Kerfin, Lord. I cover him under your blood. Speak your blessing over him. Pray for Bobby Art. I cover him under your blood. I pray for Vanita Chopra and her household in Australia. Bring them under your blood, Lord Jesus. Lord, Sabi Surjit and his household, I bring under the blood of the Lamb. Hallelujah. Thank you. Lord, I bless Brother Ravi Prakash Gupta. Lord, I bind him with the covenant of blessing, with the covenant of exponential growth and increase that you sealed with Abraham our father. I bring Gurpreet Singh before your throne of grace. I pray for Ruby Sanghera from Britain. I cover her under your blood and her household. Lord, Lalit Mehra and his household under your blood, Lord. Hallelujah. Pray for, Father, other folks who are not showing up right now. I pray for Akansha Gaba. I cover her under your blood. I pray for Sunita Kaur, your daughter. And I pray for her children, all her daughters. Lord, I bind them all with the covenant that you sealed in the blood of Jesus of Nazareth. Hallelujah. तेरे लहू की जय जयकार। प्रभु, आज की शाम हम तेरे हजूर में आते हैं। तेरे कलाम को खोल खुदावन और हमारे दिलों से बात कर। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आपको अगर आप 2 दिन से 3 दिन से सुन रहे हैं मैसेज, तो हम प्रभु के वचन पे मनन कर रहे हैं, बहुत अद्भुत बातों पे। मैंने आपको बताया पहले कि वो खरब, हिब्रू भाषा में वर्ड है खरब, जहाँ से खरबीम वर्ड निकला। लूसीफर खरब था, हिब्रू में खरब, खरब, जहाँ से खरबीम निकला। और खरब हिब्रू में बहुत शक्तिशाली वर्ड है, जिसका मतलब है वन हु ग्रैब्स, वन हु होल्ड्स, वन हु इज डोमिनेंट, जो शक्ति से भरा है। तो उसका नाम था हीलियल। हानूक अपनी पुस्तक में लिखता है कि पाप में गिरने से पहले उसका नाम था समाएल।
खैर बाइबल में लिखा है हिज नेम वॉज हीलियल, लेकिन हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च ने जो बाइबल को ट्रांसलेट किया लैटिन में, वल्गेट में, वहाँ पे उन्होंने वर्ड इंटरजेक्ट कर दिया लूसीफर, जिसका मतलब लाइट बेयरर। और उसी वर्ड से लोग एक अलग थियोलॉजी निकाली, मैंने आपको कल परसों बताया उसके विषय में। लूसीफेरियन लोग, इल्यूमिनाटी लोग, फ्री मेसनरी लोग, वो लूसीफर को ज्योति का स्रोत मानते हैं कि वो इल्यूमिन करता है, एंड ही इज़ द ट्रू लाइट एंड ही इज़ द ट्रूथ। दे आर द डार्क रिलीजन्स, डार्क कल्ट दैट वर बॉर्न इन बैबिलोन। बाबिलोन जो है दुनिया के हर प्रकार के झूठ की माता है। बैबिलोन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, बहुत गहरी अध्ययन है बैबिलोन के ऊपर, बाबुल के ऊपर। बाबुल वो जगह है जहाँ से शैतान के सारे मार्ग निकलते हैं, जितने पृथ्वी पे फैले हैं ब्रह्मांड में, वो सब बाबुल में पैदा हुए हैं। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वो जो स्त्री है, प्रकाशित वाक्य में 3 बैबिलोन हैं। एक बैबिलोन सिटी का नाम है, एक बैबिलोन सिस्टम है, द एंटायर सिस्टम दैट इज रनिंग दिस वर्ल्ड, वो बैबिलोन है। और एक रिलीजियस सिस्टम है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक रिलीजियस सिस्टम है, और एक सिटी है बैबिलोन। एक को मिस्ट्री बैबिलोन कहा गया है। तो बैबिलोन जो वचन में लिखा है, मदर ऑफ ऑल हार्लट्स, सारी वेश्याओं की माँ है वो। और वो किसके ऊपर बैठी हुई है? वचन में लिखा है बीस्ट के ऊपर बैठी है। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर प्रभु यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे बीच में तलवार भेजूंगा अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, अगर मेरी वाचा के अनुसार तुम अपना जीवन नहीं जियोगे तो मैं तलवार भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है मैं अकाल भेजूंगा, फिर प्रभु कहता है मैं मरी भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है यदि तुम तीनों से भी मेरी ओर नहीं पलटे और अपने बुरे काम नहीं त्यागे तो मैं बीस्ट भेजूंगा। बीस्ट है गवर्नमेंट, एम्पायर। अभी बीस्ट आएगा। ये कोरोना वायरस आपको बीस्ट की ओर लेके जा रहा है, जंतु जिसे पंजाबी में कहा गया है। ये सिस्टम है पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक सिस्टम जो दुनिया पे राज करने वाला है। एक राजा होगा, वो यरूशलेम के ऊपर अधिकार करेगा, पूरे विश्व में झूठी शांति लाएगा, इज़राइल और फिलिस्तीनियों के बीच में बाचा बंधवाएगा, लेकिन फिर उस बाचा को बीच में तोड़ देगा। हालेलुया। उस समय टेंपल बना होगा। हालेलुया। क्योंकि वो उस टेंपल के अंदर घिनौनी वस्तु को खड़ा करेगा, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं द अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। हालेलुया। तो ये जो लूसीफर था, इसके विषय में मैंने आपको बताया। प्रभु कहता है दाउ वर्ट एन एनॉइंटेड खरब, तू एक अभिषिक्त करूबीम था, पंजाबी में लिखा है। अभिषिक्त के लिए शब्द है मशयाक। जो शब्द यीशु मसीह के नाम के संग लगा, वही शब्द यहाँ पे लगा है किसके साथ? 28 अध्याय इज़िकियल नबी की पुस्तक, उसके 14 वचन से। और अगर आप पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसके 14 अध्याय के 12 वचन से, तो आपको मिलेगा लूसीफर जो है उसे उसके नाम के साथ जुड़ा है मशयाक, मसीहा। हालेलुया। लूसीफर को मसीहा कहा गया है। पहली बार मशयाक वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ, मसाया जिसे हम बोलते हैं। ग्रीक भाषा में उसे आप बोलोगे क्रिस्टोस या क्राइस्ट। तो वो क्राइस्ट है। प्रभु क्या कहता है उसके विषय में? बहुत अद्भुत बातें कहता है कि तू सिद्ध था, तू कामिल था, तू संपूर्णता की मोहर था। और क्या लिखता है इज़िकियल अपनी पुस्तक में? कि परमेश्वर ने सारे साज उसके अंदर बनाए थे, और वो परमेश्वर यहोवा के पवित्र पर्वत पे रहता था। और क्या करता था? ऐसे चलता था, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन चलना एक बड़ी गहरी आत्मिक बात है। आत्मा में अप एंड डाउन चलना। और किस में चलता था? लिविंग स्टोन्स के अंदर, आग के पत्थर थे जिनके बीच में चलता था। और अगर आप पढ़ेंगे तो
यहोवा परमेश्वर ने लूसीफर को 9 स्टोन दिए थे। मैंने आपको कई बार दिखाया, अभी मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। हालेलुया। ये है, आप देख चुके हैं, इसको जानते हैं आप, ये मनोरा है। मनोरा लुकना भी कहते हैं इसको। ये देखिए, इसके अंदर ये 12 पत्थर हैं, 12 स्टोन। लूसीफर को यहोवा ने 12 नहीं दिए, लूसीफर को यहोवा ने 9 दिए, 9। किसी समय आपको बताऊंगा 3 कौन कौन से नहीं दिए, उनका मतलब क्या है। वो 3 जो नहीं दिए वो 3 मसीह के ही पास हैं। 12 स्टोन्स 12 इज़राइल के गोत्र हैं। कुछ रब्बी लोग यहूदी मानते हैं कि ये दुनिया की 12 डिमेंशंस हैं, 12 डिमेंशन। तो सेटन को प्रभु ने ऑल 12 डिमेंशन में जाने की अनुमति नहीं दी। 9 स्टोन्स थे उसके पास, और वचन में लिखा है ऑल दीज, ये जो 12 स्टोन देख रहे हैं, ऐसे 9 थे उसके पास। जो 3rd रो है, 1st 2nd 3rd, 3 की 4 रो हैं, 3rd रो के अंदर जो स्टोन है वो उसको नहीं दिए यहोवा ने। Those 3 were missing. So what are these stones? What are these stones? What do they signify? The high priest would have a stone here with the name of the 6 tribes of Israel, another stone here, and all this breastplate, ये जो breastplate होती थी high priest की, it was here on his heart, right on the heart. It was tied up by those 2 stones on each shoulder. Each stone represented 6 tribes of Israel, and he had 2 more stones called Urim and Thummim. उरीम और थुमीम 2 पत्थर और होते थे उसके पास। यहूदी रब्बी मानते हैं कि जब परमेश्वर किसी भी ढंग से बात नहीं करता था, नबियों के वसीला से नहीं करता था, अपने कलाम के वसीला से नहीं बोलता था, तब महायाजक उन 2 पत्थरों के द्वारा यहोवा से बात करता था। तो उसका पूरा मीनिंग तो लोगों को अभी नहीं मालूम, लेकिन कुछ रब्बी लोग ये मानते हैं कि एक पत्थर का मतलब विजडम, हिकमत, और दूसरे का मतलब था रेवलेशन, रोशनी, लाइट। तो कुछ लोग मानते हैं कि उसके अंदर लाइट जल जाती थी और परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता था इज़राइल के ऊपर। जब महायाजक यहोवा के आगे जाता है, उसके सीने पे क्या है? ये 12 पत्थर है। जब हाई प्रीस्ट जाता है तो अपने पापों को ढांकने के लिए बैल का लहू लेके जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि महायाजक के जीवन के पाप से वो मर जाए, तो वो बैल का लहू यहोवा को अर्पण करता है। और प्रजा के पापों के लिए योम किपुर के दिन वो बकरे का लहू लेके जाता है। हालेलुया। 2 मुख्तलिफ तरह के लहू। महायाजक अपने लिए भी लहू लेके जाता है, लेकिन बाइबल बताती है हमारा महायाजक यीशु मसीह, वो स्वर्गीय मकामों में, मूसा को यहोवा ने पहाड़ के ऊपर स्वर्ग की हैकल दिखाई थी और स्वर्ग की हैकल को कॉपी करने के लिए कहा था। परमेश्वर चाहता है स्वर्ग को ज़मीन पे उतारा जाए। दैट इज़ द विल ऑफ गॉड, दैट हेवन इज़ रेप्लिकेटेड ऑन द अर्थ, that we become the Xerox copies of heaven. That is God's desire. Hallelujah. He wants everything to be created after the heavenly pattern. लेकिन कलीसिया बेबीलोन के पैटर्न पे ढलती जा रही है। कलीसिया स्वर्ग के पैटर्न पे नहीं ढल रही। कलीसिया बेबीलोन के, बाबुल की नगरी के सिद्धांतों पे चल रही है। बाबुल के जैसा म्यूज़िक चाहिए, रॉक, जैज़, हैवी मेटल, पॉप कल्चर चाहिए। उसी गानों को ढाल के आराधक लोग आराधना कर रहे हैं। उनके माइंड इन्फ्लुएंस्ड है उन धुनों से जो दुनिया में बज रही हैं। वो यहोवा के चरणों में बैठ के यहोवा की धुन नहीं ले रहे, यहोवा की आत्मा के द्वारा गीत नहीं लिख रहे। एक वही कल्चर दुनिया का अंदर लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की बड़ी बड़ी चर्चेस के बड़े बड़े लीडर्स ने लोगों को ये सिखाया कि हमें रेलेवेंट चर्च बनाना है। ऐसा कलीसिया बनाएं जो जगत से मेल खाए।
रेलेवेंट हो, और हमें हर एक चीज़ को रेलेवेंस में लाना है। कंटेम्प्रेरी चर्च, फिर उनकी बातें क्या हैं? रेलेवेंट चर्च, कंटेम्प्रेरी चर्च, कैसे कैसे टर्म्स उन्होंने कॉइन की हैं। ऑल इंक्लूसिव चर्च, कलीसिया जो सबको एम्ब्रेस करती है। बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज स्टेट्स के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर परमेश्वर के सामने गिर चुकी हैं। उनके नाम बड़े बड़े हैं, आप उनकी किताबें पढ़ते होगे, बड़े बड़े प्रीचर हैं, टीवी पे देखते होगे, लेकिन यहोवा का ये जो कलाम है उनके अंदर नहीं है। ये नहीं है। मैं उन चीज़ों को आत्मा में परखता हूँ, अध्ययन करता हूँ, उन्हें समझता हूँ, जानता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये बातें परमेश्वर के सच्चे कलाम से। रिक जॉयनर एक बहुत बड़े प्रीचर हैं जिनकी पुस्तक पूरी दुनिया में बिकी, पर्पस ड्रिवन लाइफ। पढ़िए उस पुस्तक को, उसकी पूरी वर्कबुक को पढ़िएगा, उनकी और किताबें उन्हें पढ़िएगा। वो सिखाते हैं कि हमें हेल के विषय में नहीं बताना किसी को, हमें बताना नहीं लोगों को जजमेंट के विषय में, हमने प्रचार नहीं करना ब्लड के ऊपर, ब्लड के सॉन्ग नहीं चाहिए, ब्लड पे प्रचार नहीं करना, ब्लड दैट बिकम्स वेरी ग्रोस मैसेज। We don't have to talk about it. Don't talk about judgment. Don't tell anybody about sin. Don't talk sin. Bring people with love. Love. Let there be love in the church. Love will win people. Let homosexual, lesbian, gay, people from all different kind of evil vices, let them come in the church. Make them comfortable in your church. Make them feel good. Let them know you're welcomed. Don't judge. आज सबसे ज़्यादा मैसेज झूठा क्या प्रचार हो रहा है? डोंट जज, दोष मत लगाओ। वही नूह के समय की दुनिया है ये। वो 120 साल प्रचार करता रहा, लेकिन 120 साल पूरे हुए, नाव के अंदर गया, सब कुछ नाव के अंदर कर लिया, बाहर से दरवाज़ा लगा दिया यहोवा ने। बारिश आई, जब पानी बहुत ऊंचा बढ़ा तो लोग भागे, दौड़े, कुछ तैर के आ गए नूह की किश्ती के पास। पहले कह रहे थे डोंट जज अस, क्योंकि कभी किसी ने बारिश नहीं देखी थी, बारिश कभी हुई नहीं, कोहरा सींचता था पृथ्वी को, तो लोगों ने नूह के मैसेज पे विश्वास नहीं किया। लोग सोचते थे परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामयी है, गॉड इज लव, गॉड इज और क्या कहते थे? कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहोवा परमेश्वर पूरी दुनिया का विनाश करेगा और केवल 8 लोगों को बचा लेगा। कोई सोच सकता है? इतना क्रूअल गॉड, इतना एंग्री जजमेंटल परमेश्वर जो सारी कायनात को मार रहा है, केवल 8 लोगों को बचा रहा है। तो कितना झूठा प्रचार है इस समय, कितना झूठा वचन को पेश किया गया है। वचन की, कलाम की हकीकत, कलाम की सच्चाई प्रचारक लोग नहीं बताते लोगों को। बहुतेरे तो ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि वचन में लिखा है इसके विषय में, मैं आपको पढ़ देता हूँ वचन। 28 चैप्टर निकालिए, 28 अध्याय, इज़िकियल नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, और पढ़िए मेरे साथ 14 वचन से। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 13 वचन से, सुने। यू वर इन ईडन, तू अदन में था। ये अदन स्वर्ग में है। अभी स्वर्ग में से यहोवा अदन को नीचे लाता है पृथ्वी पे। मैंने आपको बताया खनाक यानी अनाक 2 हिब्रू वर्ड है वहाँ पे। स्वर्ग से यहोवा गार्डन ऑफ ईडन को नीचे लाता है, फिर एडम को बनाता है पृथ्वी पे, उसे उठा के अदन के बाग में रखता है। तो ये किसके विषय में लिखा है? ये लूसीफर है। यू वर इन ईडन, तू अदन में था। द गार्डन ऑफ गॉड, यहोवा का बाग है वो। यहोवा को बाग लगाना बहुत भाता है, यहोवा बाग में मिलता है। ही लव्स गार्डन, हालेलुया। तो क्या लिखा है? एवरी प्रेशियस स्टोन वॉज योर कवरिंग, हर कीमती पत्थर तेरी कवर। जैसे ये स्किन जो है, ये मेरी कवरिंग है। ये स्किन बहुत फ्रेजिल है, हल्का सा कट लगे लहू निकलता है, लेकिन लूसीफर की कवरिंग क्या है? ये कीमती पत्थर हैं। एवरी प्रेशियस स्टोन वॉज योर कवरिंग, कार्नेलियन, टोपाज, जैस्पर,
chrysolite, beryl, onyx, sapphire, carbuncle, emerald, and all your settings and your sockets and engraving were wrought in gold. 9 स्किन है उसके पास, 9 स्किन कीमती पत्थरों की, और 10th कवरिंग है गोल्ड की. एंड योर सेटिंग, और लिखा गोल्ड, ऑन द डे यू वर क्रिएटेड दे वर प्रिपेयर्ड. जिस दिन तू बनाया गया उस दिन यहोवा ने सब तेरे लिए तैयार किया. यही बात यहोवा परमेश्वर यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय के 12 से 15 वचन में कहता है. यू वर एन अनॉइंटेड खैरब, तू एक अभिषेक खैरब था, करूब था. मैंने आपको बताया खैरब हिब्रू वर्ड का मतलब होता है डोमिनेंट फोर्स, सामर्थी. द वन हु ग्रैब्स, जो पकड़ता है, थामता है. द वन हु इज डोमिनेंट. ही इज नॉट एन एंजल, वो फरिश्ता नहीं है कोई, वो खैरब है, पावरफुल है, डोमिनेंट है, माइटी है. और क्या करता था? दैट कवर्स विद ओवरशैडोइंग विंग्स. अपने पंख से क्या करता था? ढांपता था. यहोवा के पहाड़ पे था. यहोवा परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पे क्या काम करता था? ये देखिए, ढांपता था. ये आप देख रहे हैं, ये है परमेश्वर की आर्क ऑफ कवनेंट. इसको याजक लोग उठा के लेके जा रहे. देखो, इसको ढांका हुआ है अपने पंख फैला के. ये खैरब हैं जिन्होंने ढांका है. ये शक्तिशाली बीइंग है. जब यहोवा ने अदन के बाग से आदम को निकाला तो यहोवा परमेश्वर ने अदन के बाग के फाटक पे, और वो रास्ता जो जीवन के वृक्ष तक जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए खैरब को लगाया, करूबीम को लगाया, और एक ब्लेजिंग रोटेटिंग फायरी सोड, आग की एक तलवार वहाँ घूमती है. वहाँ पे कोई घुस नहीं सकता. हालेलुया, थैंक यू जीसस. और क्या लिखा है यहाँ पे? एनॉइंटेड खैरब. यहाँ पे जो अनॉइंटेड के लिए वर्ड है माशियाक, जो यीशु मसीह के संग लगा है, मसाया. ग्रीक में बोलेंगे क्रिस्टोस या क्राइस्ट. ये क्राइस्ट है, क्रिस्टोस है, अभिषेक. और क्या कहता है प्रभु? क्या कहता है? आई सेट यू, यू वर अपॉन द होली माउंटेन ऑफ गॉड. तू यहोवा के पवित्र पहाड़ पे था. यू वॉक्ड अप एंड डाउन. कैसे चलता था? अप एंड डाउन in the midst of stones of fire, like paved work of gleaming sapphire, stone upon which God of Israel walked on the Mount Sinai. Hold करें please. Thank you Jesus. Thank you Jesus. अब सभी लोगों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? Please let me know. Hallelujah. सुनिएगा ध्यान से. परमेश्वर ने खुद इस खरब को कहाँ रखा था? होली माउंटेन पे, जहाँ पे खुद यहोवा चलता फिरता था. कैसे चलता फिरता था? अप एंड डाउन. दिस इज हाउ यू वॉक इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट. यू गो अप एंड यू कम डाउन, यू गो अप एंड यू कम डाउन. आपको मालूम, बाइबल में चारों सुसमाचारों में लिखा है, कई जगह लिखा है कि यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया और सारी रात पहाड़ पे प्रार्थना करता रहा. अगर आप उसे पूरा ग्रीक ग्रामर में जाके अध्ययन करेंगे उसका, तो वो ये बताता है जीसस वॉक्ड इनटू द माउंटेन, नॉट ऑन द माउंटेन. जीसस वॉक्ड इनटू द माउंटेन, राइट ऑन द टॉप. माउंटेन टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल में. पहाड़ यहोवा की गवर्नमेंट को दिखाते हैं और पहाड़ शैतान की गवर्नमेंट को भी दिखाते हैं. पहाड़ शैतान की सरकार भी हो सकते हैं जो आपके विरोध में है, और पहाड़ पे यहोवा अति पवित्र परमेश्वर अपनी सभा लेके बैठता है. इस पहाड़ पे, ये यहोवा का पवित्र पहाड़ है, इस पे यहोवा चलता है ऐसे अप एंड डाउन. पहले वो कैसे चलता था? अप एंड डाउन चलता था, और आग के पत्थरों के बीच में. ये आग के पत्थर जो हैं, ये विशेष किस्म के एंजेलिक बीइंग हैं, वेरी पावरफुल एंजल्स. परमेश्वर ने एंजल्स की कई कैटेगरीज बनाई हैं, कई डिमेंशंस हैं एंजल्स की. वी डोंट फुली नो एवरीथिंग. जितना वचन में प्रकाश है वो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमेंशंस हैं एंजेलिक बीइंग की. ये जो जीवित पत्थर हैं, लिविंग स्टोन्स,
फायर के, आग के स्टोन है, इनके बीच में वो चलता था। और वो क्या था, ऐसे चलता था। आप पढ़ लीजिए एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका मैं एक वचन आपको देता हूं। एक्सोडस चैप्टर नंबर 24 निकालिए, निर्गमन का 24 अध्याय निकालिए। एक्सोडस 24, एक्सोडस 24 का 10 वर्स पढ़ें। निर्गमन 24 का 10, एक्सोडस 24 वर्स 10। सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे। एंड दे सॉ गॉड ऑफ इजराइल, दैट इज ए कन्विंसिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज प्रेजेंस, एंड अंडर हिज फीट it was like pavement of bright sapphire stone, like very heavens in clearness. Hallelujah. Thank you Jesus. आप जानते हैं ये किस विषय में बात कर रहा है? जब यहोवा सिनई पहाड़ पे उतरा है, उसके अंदर बहुत गहरे भेद हैं। जब यहोवा खुद सिनई पहाड़ पे उतरा है, जब यहोवा परमेश्वर खुद सिनई पहाड़ पे उतरा, तो 3 बार मोजेस गया 40-40 दिन के लिए, एक बार नहीं गया। यहाँ पे परमेश्वर मूसा के साथ हारून, इसका 9 वचन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। देन मोजेस, एरन, नेदाब एंड अबीहू एंड 70 ऑफ द एल्डर्स ऑफ इजराइल वेंट अप, ऊपर गए। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन वचनों को, फिर किसी समय वो मैं शिक्षा दूंगा आपको, ओरिजिनल आप असली हिब्रू टेक्स्ट पढ़ेंगे। जब यहोवा परमेश्वर उस पहाड़ पे उतरा, सिनई पहाड़ पे, तो वो पहाड़ ऐसे हवा में उठ गया, इट लेविटेटेड इन द एयर, और मूसा और इस्राएल पहाड़ के नीचे आ गए। दैट इज द हिब्रू टेक्स्ट। 2 जगह लिखा है, एक्सोडस में लिखा है और डिट्रोनमी में लिखा है। मैं फिर आपको वो वचन दूंगा। पहाड़ के नीचे चले गए, पहाड़ ऊपर, ऊपर यहोवा, इजरायली कौम पहाड़ के नीचे। और यहोवा परमेश्वर उस समय क्या करता है, इजरायली कौम के साथ शादी करता है। आप सबको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। मेरी एंड से मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है नेटवर्क। प्लीज़ राइट अ मैसेज, लिखिए संदेश अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। हालेलुया, इज इट ओके? तो बनी इस ऐसे पहाड़ हवा में ऊपर चला जाता है जिसके ऊपर यहोवा की हजूरी है, और इज़राइल पहाड़ के नीचे आ जाता है। और इट इज़ कॉल्ड कतूबा, कतूबा विच इज़ मैरिज। याहवे मैरीज इज़राइल। हालेलुया। यहोवा की इज़राइल, वो जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे पासवान के आगे आप बोलते हो ना कि दुख और सुख में जी हाँ, तुम इसे पति स्वीकार करती हो, जी हाँ, तुम इसे पत्नी स्वीकार करती हो, जी हाँ, वो कतूबा होता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। याहवे वाज अप, माउंटेन लेविटेटेड इन द एयर एंड इज़राइल इज अंडरनीथ एंड द मैरिज इज हैपनिंग। जो ऊपर यहोवा उठ के गया है और पहाड़ के नीचे, उसे कहा जाता है हुपा। हुपा का मतलब होता है मंडप, यहोवा की हजूरी का मंडप। हालेलुया। इसीलिए मंडप में शादी होती है। तो क्या लिखा है वचन में, अगर आप वहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहोवा की हजूरी, आपको मैंने सुबह बताया था कि ये जो सिनई पहाड़ है मिस्र में नहीं है, ये सऊदी अरेबिया में है, और इन पहाड़ों का नाम है एल जबाल, ELLJABAL। एल जबाल करके गूगल सर्च करें, या माउंट एल जबाल करके आप इंटरनेट पे डालिएगा गूगल साइट पे, तो आपको पहाड़ दिखाएगा सैटेलाइट के थ्रू। वो पहाड़ आज भी जले हुए हैं, काले हैं ऊपर से। उन्हीं पहाड़ों पे चला गया था पॉल दी अपोस्टल। पौलुस कहता है मैं सीधा सऊदी अरेबिया चला गया, गलतियों की पत्री में। मैंने लहू और मांस से मशवरा नहीं किया, मैं यरूशलेम नहीं गया सीखने के लिए प्रेरितों से, मुझे पवित्र आत्मा सीधा सऊदी अरेबिया ले गया।
और मैं वहाँ गया और 3 साल प्रभु की हजूरी में रहा। तो प्रभु ने प्रेरित पौलुस को सुसमाचार दिया, जो पौलुस कहता है कि मुझे दिया वो सुसमाचार। प्रकाश दिए यीशु मसीह ने, रेवलेशन दिए यीशु मसीह ने, भेद दिए यीशु मसीह ने, अपने गहरे और गुप्त बातें प्रेरित पौलुस को दी, जिसे मिस्ट्री कहा गया, जो मैं आज सुबह आपको बता रहा था 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में। प्रेरित पौलुस कहता है मिस्ट्रीज के हम क्या हैं, स्टूवर्ड हैं, भंडारी हैं। और मैंने आपको बताया वो शब्द है इकोनोमिया। इकोनोमिया वही शब्द है जहाँ से इकोनॉमी शब्द निकलता है, लेकिन इकोनोमियों का उइकोस नोमोस, नोमोस का मतलब होता है लॉज, कानून। उइकोस का मतलब ग्रीक में होता है घर, घर को चलाने वाले नियम, घर को चलाने वाली व्यवस्था, घर को चलाने वाली विधियां यहोवा ने दी। हम लोग भंडारी हैं परमेश्वर के भेद के, गहरे भेद के, परमेश्वर के प्रकाश के, परमेश्वर के रेवलेशन के, परमेश्वर की असीम बुद्धि के, परमेश्वर की गुप्त बातों के भंडारी हैं। तो हमें फेथफुल होना है। हम परमेश्वर के इन जो रिसोर्सेज हैं स्पिरिचुअल, जो रेवलेशन है, प्रकाश हैं, परमेश्वर की बुद्धि है, ज्ञान है, परमेश्वर के गिफ्ट हैं, वरदान हैं, इनको हम सेल नहीं कर सकते। पैसा लेके सेल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये अनमोल हैं। कौन यहोवा की अभिषेक का मोल उतार सकता है, बताइए मुझे। पतरस से एक व्यक्ति कहता है ये वरदान मुझे दे दे, मैं पैसे देता हूं तुझे। तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा योर मनी पेरिश विद यू, यू आर ब्लास्फेमिंग द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो आज एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जो खास शायद वो आज समाप्त नहीं हो पाएगी। प्रभु इसके विषय में क्या कहता है? कहता है यू वर ब्लेमलेस इन योर वेज, Ezekiel 28:15, फ्रॉम द डे यू वर क्रिएटेड अनटिल इनिक्विटी। मैंने इनिक्विटी के ऊपर आपको बहुत शिक्षा दी है। इनिक्विटी बहुत गहरा पाप है, जो डीएनए में रहता है, जो जीन्स में रहता है। पाप सिन नहीं पाया गया शैतान में, क्या पाया गया? इनिक्विटी, अवान। प्रभु कहता तेरे अंदर अवान पाया गया, एंड गिल्ट वर फाउंड इन यू, तेरे अंदर। थ्रू, वजह क्या बता रहा है प्रभु? थ्रू द अबंडेंस ऑफ योर ट्रेडिंग, तेरे ट्रेड की अबंडेंस के कारण। पंजाबी में लिखा तेरे व्यापार दे वाधे कारण, लेकिन वर्ड है ट्रेड। तो वो क्या ट्रेड करता था? ट्रेड करता था, ये स्टोन्स जो होते हैं ये ट्रेड के लिए दिए जाते हैं। बाइबल पूरी ट्रेडिंग से भरी हुई है, सब ट्रेड से भरा हुआ है। आप देखिए आपका जीवन ट्रेड से कैसे जुड़ा है। आप ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, आप दूध लेते हैं, एग्स लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, जैम लेते हैं, आप फ्रूट लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं, आप नैपकिन्स खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, फ्रूट लेते हैं, आप अलग अलग चीज़ें लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं। तो वो सब थैले में लेके चेकआउट काउंटर पे जाते हैं। तो वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, वो सब चीज़ों को स्कैन करता है, बार कोड स्कैन करता है और बिल बना के आपको देता है। आप इंडिया में हो तो आप 800, 900, 1000, 2000, 5000, 10,000। आप ब्रिटेन में हो तो आप 20 पाउंड, 15 पाउंड, 18 पाउंड। यूएस में हो तो डॉलर्स या यूरो या रैंड, अगर साउथ अफ्रीका में हो येन, अगर आप जापान में हो जुआन, अगर आप और कंट्रीज़ के अंदर हो रूपीज़, अगर आप इंडिया में हो। तो आपने ट्रेड किया, आपने 700 रुपया दिया और वो चीज़ें ले ली। सेटन क्या ट्रेड करता था? यहाँ पे लिखा है थ्रू द अबंडेंस ऑफ योर ट्रेडिंग यू वर फिल्ड विद लॉलेसनेस एंड वायलेंस and you sinned, therefore I cast you out as a profane thing from the mountain of God, and the guardian cherub drove you out from the midst of the stone of fire। ये जो आग के पत्थर है उनके बीच में ट्रेड करता था। मैंने आपको बताया कि जब यहोवा परमेश्वर मूसा को कतूबा लिख के देता है, 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। यहोवा अपनी प्रजा से शादी करता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज हैं वो। और परमेश्वर किस पे लिख के देता है? सैफायर, एक कीमती, हीरे से भी कीमती पत्थर है।
सैफायर, उस पर अपनी उंगली से लिख के देता है। कितनी प्रेशस होंगी वो 2 तख्तियाँ। और मूसा आ रहा है और मूसा की स्किन में से ऐसे रोशनी फूट फूट के निकल रही है। प्रभु की हजूरी में रहा वो, प्रभु की रेडियंस से भर गया, ऐसे ऊज आउट कर रही है उसमें से। तो वचन में लिखा है कि उसने चिलमन डाल ली, पर्दा डाल लिया। लेकिन जब हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस बताता है मूसा ने पर्दा डाला क्यों। मूसा ने अपने चेहरे पे पर्दा इसलिए डाला क्योंकि मूसा के चेहरे पे जो जलाल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मूसा चाहता नहीं था इजरायली लोग उसके घटते हुए जलाल को देखें, इसलिए उसने पर्दा डाल दिया। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि वो तो बंद किए हुए चेहरे से सेवा की गई है पुराने ऐहदनामे की, हम उगड़े हुए चेहरे से सेवा करते हैं। वहाँ पे तो महिमा, प्रताप, ग्लोरी, जलाल कम होता जा रहा है, यहाँ पे एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो जब मूसा आता है नीचे, वो देखता है इजरायली लोग क्या कर रहे हैं। इजरायली लोग और जगह ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिंग फ्लोर होते हैं, स्वर्ग में ट्रेडिंग फ्लोर हैं, नरक में भी ट्रेडिंग फ्लोर हैं। परमेश्वर के ट्रेडिंग फ्लोर हैं, शैतान के ट्रेडिंग फ्लोर हैं। इसके ऊपर हम शिक्षा लेंगे वचन में से। मूसा जब आया उसने देखा इस्राएली कौम ट्रेड कर रही है शैतान के फ्लोर पे। उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया है और उस बछड़े की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और चीज़ लिखा वहाँ पे, शायद वो अपने बस्तर उतार के नंगे होके गंदी कामना वासना की आत्मा से भर के गंदे काम कर रहे हैं। तो मूसा क्या करता है, सैफायर के पत्थर पे लिखी हुई जो कतूबा थी, परमेश्वर के कॉन्ट्रैक्ट थे, उसको उसने तोड़ दिया। अगर मूसा उन तख्तियों को ना तोड़ता, परमेश्वर की व्यवस्था तख्तियों पे कायम रहती, तो सारी इजरायली प्रजा मर जाती। कर्स ऑफ द लॉ, व्यवस्था के श्राप के कारण सारे मर जाते। लेकिन 3000 लोग कौन मरे, जो इस मूर्ति पूजा के गंदे घिनौने काम में शामिल थे। 3000 मर गए। और आपको मालूम, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी, तख्तियों पे 10 नियम लिख के दिए, जिस दिन मूसा नीचे आया वो दिन पंतेकुस्त का दिन था, डे ऑफ पेंटेकॉस्ट था। काउंट कर लीजिए आप, इस्राएली लोग कूच कब किए हैं, फसह की रात। फसह की रात के बाद पंतेकुस्त के दिन वहाँ पहुँच गए हैं। वो पहला पंतेकुस्त है वो। उस पंतेकुस्त के दिन 3000 लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि इजरायली कौम शैतान के फ्लोर पे ट्रेड कर रही है। और जब नए नियम में पंतेकुस्त का दिन आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, पवित्र आत्मा उतर आया, आग उतरी स्वर्ग से, आग की फटती जीभें। तो वचन में क्या लिखा, 3000 के करीब लोग बचाए गए। पहले पंतेकुस्त पे 3000 मारे गए, नए नियम के पंतेकुस्त पे 3000 लोग बचाए गए। तो शैतान के ट्रेडिंग फ्लोर भी हैं, लोग वहाँ भी ट्रेड करते हैं, और यहोवा के ट्रेडिंग फ्लोर भी हैं। मैं अभी उपवास कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी उपवास कर रही है, हम ट्रेड कर रहे हैं। हमने अपना भोजन त्याग दिया, हम अपना समय प्रभु को दे रहे हैं, अब प्रभु पे फोकस कर रहे हैं। हम अपना टाइम, एनर्जी, भूख, खाना, एपेटाइट ट्रेड कर रहे हैं परमेश्वर की हजूरी के लिए, कि परमेश्वर की गहरी हजूरी हमारे ऊपर आए, परमेश्वर हमें ब्रेक थ्रू दे, हमारी विशेष प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर दे। इसलिए हम ट्रेड कर रहे हैं। आप प्रार्थना करते हो, अर्ली मॉर्निंग उठते हो, उपासना करने लगते हो, नींद आ रही होती है, मुंह धो के प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, आप ट्रेड कर रहे हो। आप यहोवा परमेश्वर के आगे भेंट लेके आते हो। प्रभु क्या कहता है प्रभु कहता है अपने दशमांश मेरे मोदी खाने में लेकर आओ। हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं, प्रभु आज्ञा देता है। आप मलाकी नबी की पुस्तक में, फेवरेट स्क्रिप्चर आप सभी जानते हो, 3 अध्याय में प्रभु कहता है कि अपने दशमांश मेरे मोदी खाने में लेकर आओ। और फिर प्रभु क्या कहता है, वो इससे मुझे अजमा के देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूँ या नहीं। आपको मालूम झरोखों के लिए शब्द क्या वहाँ पे, फ्लड गेट्स। आपने कभी डैम देखा, बड़ा डैम होता है और एक दीवार बनी होती है कंक्रीट की बड़ी, और उसमें गेट लगे होते हैं। हमारे यहाँ तलवाड़ा में 52 गेट्स कहते हैं उसको, 52 गेट।
वो गेट बड़े बड़े होते हैं, हाइड्रोलिकली खुलते हैं। अगर वो गेट नीचे से थोड़ा सा खुल जाएं तो सामने की नहर पानी से भर जाती है। 52 गेट्स हैं यहाँ तलवाड़ा में, ब्यास डैम में। प्रभु कहता है मैं फ्लड गेट खोलूंगा स्वर्ग के, इफ़ यू ब्रिंग टाइड्स इन टू माई स्टोर हाउस। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मुझे आजमा के देखो। प्रभु गारंटी देता है कि जब आप सो करते हो फाइनेंशियली तो फिर मुझे आजमा के देखो। तो मैं आपको कहता हूँ कि यदि परमेश्वर आपको ये कहता है मुझे आजमाओ कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, प्रभु पता क्या कहता है? कहता है मैं स्वर्ग के फाटक खोलूँगा, फ्लड गेट खोलूँगा और ऐसे आशीष दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। अगर आप सही टाइद दे रहे हो, सही हृदय से, सही आपकी कमाई का टाइद सही जगह बो रहे हो, तो ये ब्लेसिंग आपके ऊपर आनी चाहिए। उस सेवकाई को भी आपको गारंटी देनी चाहिए कि आपको प्रभु ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु गारंटी देता है। आपको मालूम क्या लिखा है? डिट्रॉनमी व्यवस्था विवरण 18:4 में लिखा, फर्स्ट फ्रूट मेरे सामने लेकर आओ। फिर आप पढ़िएगा प्रोवर्ब व्यवस्था विवरण 18:4, फिर पढ़िए नीति वचन 3 अध्याय का 9 और 10 वचन। प्रभु कहता है तेरे खत्ते भरे भरे रहेंगे। प्रभु कहता है तेरे जो बड़े बड़े कुंड होंगे उनमें दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रभु कहता है तेरे बड़े बड़े जो स्टोर्स, बड़े बड़े मट होंगे, बड़े बड़े मटके, वो ऑलिव ऑयल से लबरेज रहेंगे, हनी से लबरेज रहेंगे, दाख मधु से लबरेज रहेंगे। प्रभु कहता है तेरे घर की हर एक चीज़ के ऊपर सुपर अबंडेंस होगी। इज़िकियल 44 का 30 पढ़िए। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। मैं आपको ये ब्लेसिंग का सबक लेने की भावना से नहीं सिखा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के सच्चे कलाम को सिखा रहा हूँ आपको कि आप जानें। ये ट्रेडिंग फ्लोर हैं सारे, ये सब ट्रेडिंग फ्लोर हैं। आप ट्रेड करते हो इनके ऊपर, प्रभु के आगे लेकर आते हो, प्रभु उसके रिटर्न में आपको मल्टीप्लाई करके देता है। दीज आर ट्रेडिंग फ्लोर्स। हालेलुया। बहुत से लोग ट्रेड नहीं करते, बहुत से लोग विंडो शॉपिंग करते हैं। कई लोग जाते हैं ना बड़े बड़े मॉल में, सारा दिन घूमते रहते हैं, ये देखा वो देखा, और शाम को कॉफ़ी का कप पी के निकल लेते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया। बाइबल में यीशु मसीह की शिक्षा ट्रेड को दिखाती है। यीशु मसीह बताते हैं कि एक स्वामी था, वो दूर देश गया, उसने अपने ओइकोनोमियास को बुलाया, स्टूवर्ड्स को बुलाया और उनको 10 टैलेंट दिए। ये टैलेंट क्या होते हैं? आप लोग सोचते हो ये टैलेंट होता है जी सिंगिंग का टैलेंट, प्रीचिंग का टैलेंट। टैलेंट के लिए ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है तलांते। ये सोने की छड़ें होती थी। हालेलुया। सोने की बड़ी बार्स होती थी। बिजली चली गई है, एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट। हालेलुया। तो ये सोने की जो बड़ी बड़ी बार्स होती थी, बहुत लार्ज बार होती थी, ये बार के द्वारा बिजनेस किया जाता था। तो वचन में लिखा है एक को 10 बार सोने की दी गई, एक को 5 दी गई, एक को 1 दी गई। और स्वामी ने क्या चाहा? ट्रेड करो इनके साथ। आपको जो टैलेंट दिया है, आपको जो जवानी दी है, आपको जो इन्फ्लुएंस दी है लोगों में, आपको जो इधर प्रभु ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, आपको ये जो मनी दी, रिसोर्सेज दिए हैं, ये ट्रेड करने के लिए दिए गए हैं। आप इनको ट्रेड कर सकते हैं अगली किंगडम के लिए। आप बड़ी बम्पर ब्लेसिंग इकट्ठा कर सकते हैं इनको ट्रेड करके। अब ये इसलिए दिए आपने टैलेंट, रिसोर्सेज, आपको लाइफ दी है, आपको परमेश्वर ने इन्फ्लुएंस दी है, आपको इंटेलेक्ट दी है, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। ये सब ट्रेडिंग के लिए है। आने वाली दुनिया में परमेश्वर आपको गवर्नरशिप देगा, किंगशिप देगा, रूलरशिप देगा, चांसलरशिप देगा। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज योर रिसोर्सेज, हाउ यू यूज योर मनी नाउ, हाउ यू यूज योर टाइम नाउ। इट डिपेंड्स ऑन दैट। हालेलुया। इसी दुनिया के लिए प्लानिंग मत करें। सिर्फ आपकी गिविंग जो है, इट इज़ नॉट, आपकी गिविंग का मतलब सिर्फ इसी दुनिया में नहीं है
कि बीजो तो यहीं पे गाड़ी बंगला कार और वीज़ा मिल जाएगा यहीं पे। आपकी गिविंग नेक्स्ट किंगडम के लिए है, जिस नई किंगडम में आपने जाना है। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु हमें उड़ा के ले जाएगा। 7 ईयर्स हम उसके साथ रहेंगे। उन 7 सालों में प्रभु क्या करेगा? प्रभु बेमा सीट पे बैठेगा। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, हम सब मसीह के न्याय के सिंहासन के आगे खड़े होंगे। करुणा के सिंहासन के आगे नहीं, न्याय के सिंहासन के आगे। सभी हम, कलीसिया भी और सेवक भी, विशेष करके सेवक जो अपने आप को कहलाते हैं। बेमा सीट लिखा उसको। बेमा वही शब्द है जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकलता है बीमा। बीमा आप करवाते हो ना, आप पॉलिसी होती है आपकी, आप पैसे देते रहते हो हर महीने। वो आपकी पॉलिसी 20, 30, 40 साल के बाद मैच्योर होती है, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे आप बेमा सीट के आगे खड़े होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? मसीह एक अलौकिक सिंहासन पे बैठा होगा, हम उसके आगे खड़े होंगे। सब सेवक जितने हैं, युगों से 20 युगों के सब सेवक वहाँ खड़े होंगे। उनके हाथ में क्या होगा भाई और बहनों? उनके हाथ में होंगे उनके काम, जो काम हम कर रहे हैं, जो सेवकाई हम कर रहे हैं। किस तरह की कर रहे हैं सेवकाई? ये लेके जाएंगे प्रभु के सिंहासन के आगे। प्रेरित पौलुस बताता है 6 तरह की सेवा है हमारी, 2 हिस्सों में बटी है। पहले भाग में है सोने की सेवा, चांदी की सेवा, कीमती पत्थरों की सेवा। और दूसरे हिस्से में सेवा है लकड़ी की, घास की, फूस की, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स। एंड देन द सेकंड कैटेगरी इज वुड, स्टबल एंड हे। घास, फूस और लकड़ी। अभी तो आप सोचते हो बहुत बड़ी सेवा, लोग कहते हैं जी साडी ते एशिया की सब नाल वड्डी चर्च है। बड़े घमंड से कहते हैं तुसी ते 20 लोगों को कलाम सुनाते हो, असी ते 20,000 लोगों को कलाम सुनाने हैं। देख लीजिए मसीह की आत्मा है या किसी और की है ये। उस समय आप जिस गज से नाप रहे हो ना, जिसको आप आज कामयाबी कहते हो, यहोवा उसे कामयाबी नहीं कहता। जिस गज से आप सक्सेस को, कामयाबी को नापते हो, यहोवा उससे नहीं नापता। आप हैरान हो जाएंगे कि कौन सा गज यहोवा लगाएगा और कैसे यहोवा नापेगा, माप करेगा। यीशु मसीह के आगे सोना, चांदी और कीमती पत्थर के काम आग में से निकाले जाएंगे। लेकिन ये जो काम सेवकाई की है ना सच्ची जिन संतों ने, जिनकी सेवकाई परमेश्वर के सच्चे कलाम पे खड़ी है, जिन्होंने पवित्र आत्मा की कुव्वत के द्वारा, यीशु मसीह के जलाली लहू के द्वारा सच्चाई की सेवा की है, आत्मा में और सच्चाई में, जिन्होंने लोगों को ठगा नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह को प्रोडक्ट बना के बेचा नहीं, जिन्होंने अभिषेक को शीशियों में उतार के बेचा नहीं, अभिषेक को मिट्टी पे उतार के, कपड़े पे, मग पे, टाइलों के ऊपर, बेडशीटों के ऊपर उतार के बेचा नहीं है। जिन्होंने सच्चा काम किया खुदावंद का, उनका काम सोने का है। सच्चाई से खिदमत की है, ठगी की, झूठ की, फरेब की सेवा नहीं की, जिन्होंने झूठी भविष्यवाणियाँ नहीं की, जिन्होंने अपने आप को ऊंचा नहीं किया ताकि लोगों के दिलों में जगह बनाएं, जिन्होंने यीशु मसीह को ऊंचा किया, जिन्होंने अपने आप को प्रमोट नहीं किया कि बड़े बड़े पोस्टर्स जगह जगह चप्पे चप्पे पे लगा के अपनी ही मशहूरी की जाए, नाम जरूर ले लिया जाए प्रभु का, यीशु मसीह जी का प्रचार, पर अपने आप को ऊंचा करने का एजेंडा। लोगों को भी वही शिक्षा दी गई हो कि मेरे को तो पापा कह सकते हो, मैं खास हूं। प्रभु न्याय कर रहा है। अब इस समय पृथ्वी पे जजमेंट आ रही है। ये कोरोना वायरस उसी का ट्रेलर है। दिस इज़ द ट्रेलर। समझ लीजिए आप अभी क्या क्या पृथ्वी पे आ रहा है। जजमेंट कलीसिया को साल लगाई जा रही है। टेम्पल जो है ना, हैकल, प्रकाशित वाक्य में पढ़िए, यहोवा की हैकल को फरिश्ता साल लगा रहा है। साल देखिए आपने कभी, प्लम लाइन कहते हैं अंग्रेजी में, इधर पंजाब में लाटू बोलते हैं, ऐसे लगा रहा है और देख रहा है सीधा काम किया है सेवकों ने या नहीं, या टेढ़ा काम है, या सिर्फ बैंक के खातों में पैसे ही डलवाए हैं, या मोबाइल फ़ोनों में पैसे ही डलवाए हैं। आ रहा हूँ तेरे घर में आ रहा हूँ, काले रंग का गेट है, खड़ी हो जा, पीले सूट वाली बहन, तेरा लक दुख रहा है। ये जिन्होंने फ्रॉड बाजियाँ की हैं ना, शैतानी रूहों से, जादूगरियाँ,
प्रभु के नाम में जादूगरियां टूना और यहोवा का सच्चा कलाम नहीं बोया, लोगों को पवित्रताई की शिक्षा नहीं दी, लोगों को प्रभु की ओर नहीं मोड़ा कि तौबा करके प्रभु की ओर मुड़ो। लोगों को प्रभु यीशु कहता है तंग गेट में से घुसो, तंग गेट में से, हालेलुया, तंग मार्ग पे चलो। आपको मालूम तंग गेट मार्ग के लिए ग्रीक वर्ड है थलीबो। थलीबो वो शब्द है जिसका मतलब होता है सताओ। 7 साल का सताओ जो आएगा नीचे पृथ्वी पे, उसे थिलिप्सिस कहा गया ग्रीक भाषा में, और थिलीबो उसी का रूट है। सताओ वाले मार्ग से, तंग मार्ग से निकलो और अपना शरीर, शरीर की वासना, शरीर की गंदी कामनाओं को रोज क्रूस पे चढ़ाओ और क्रूस को लेके मेरे पीछे हो लो और अपने आप का इनकार करो, अपने आप को छिपा दो मेरे क्रूस के पीछे और मुझे ऊंचा करो। अपने नाम की बड़ाई मत करो कि चंगा कर दिया तो अपनी गवाही लो, पास्टर जी ने दुआ की जी, संतान जी ने दुआ की जी, पापा जी ने दुआ की थी, अपोस्टल साहब ने दुआ की। ये सारे शैतानी काम है। दुआ तो की, अगर उसने सुनी नहीं तो 1 लाख दुआ कर ले, जब तक प्रभु यहोवा की कृपा नहीं होती। प्रभु यहोवा, मैंने बहुत लोगों के लिए दुआ की, प्रभु यहोवा ने कई बार इसलिए उनका जवाब नहीं दिया कि मैंने दुआ की, प्रभु यहोवा ने इसलिए जवाब दिया क्योंकि प्रभु ने उस बंदे पे तरस खाया, उस बहन पे तरस खाया, करुणा की और उसको चंगा कर दिया। तो मैं तो सेरा नहीं इधर बंधवा सकता, मैं प्रभु के चरणों में रखता हूँ जलाल सारा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। लोगों ने अपने आप को प्रमोट किया, प्रभु को महिमा नहीं दी। तो ये सारे काम घास के, फूस के, वुड स्टबल एंड हे, लकड़ी, घास और फूस के काम है, ये सब जल जाएंगे उधर। इसलिए देखो आप कौन सी नींव पे पत्थर रख रहे हो, कैसा काम है आपका, सोने का, चांदी का है, कीमती पत्थरों, कैसी सेवकाई है। यीशु मसीह को प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, पेश कर रहे यीशु मसीह आ गया तो काम करन दे लई, इस तरह पेश कर रहे हो, या यीशु मसीह की तरफ से भी कभी बोलते हो। यीशु मसीह कहता है यार मेरी तरफ से प्रचार करना, लोगों को कह जो मैं कह रहा हूँ कि क्रूस उठा के मेरे पीछे आ जाओ, अपने आप का इनकार करो, अपनी देह को क्रूस पे इसकी वासनाओं के साथ चढ़ा दो। यार मेरी तरफ से भी बोलना लोगों को कि तंग मार्ग से प्रवेश करो, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो, हल पे हाथ रख के पीछे मत देखो, हर तरह का पाप, गंदा काम, लुचपुना, जनाकारी, हरामकारी, हर तरह के गंदे घिनौने काम त्याग दो, दोगला जीवन मत जियो, तुम गुनगुने मत बनो, मैं मुंह से तुम्हें फेंक दूंगा, तुम गर्म हो जाओ मेरे लिए, अंधेरे के वस्त्र उतार के फेंक दो, रोशनी के वस्त्र पहनो, धार्मिकता की और सच्चाई की झिलम पहन लो और ज्योति के वस्त्र धारण कर लो, क्योंकि दूल्हा जल्दी आने वाला है। अपनी कुप्पियों को यहोवा की हुजूरी के तेल से भर लो, यहोवा के सच्चे कलाम की ओर मुड़ लो, इसको अपने अंदर, इसको इधर अपने दिल के बीचों बीच, इधर अपने माथे पे लिख लो और हाथों के ऊपर बांध लो, और इन मेरे वचनों को, मेरी विधियों, मेरे न्यायों को अपनी औलाद को उठते बैठते, चलते फिरते और लेटते सिखाओ। प्रभु यहोवा कहता कभी मेरी तरफ से भी बोल, ये भी लोगों को बता मैं क्या चाहता हूं, तू मुझे बता रहा है लोग क्या चाहते हैं, ये काम कर दो, वो काम कर दो, आ गया काम करन लई, बड़े बड़े काम होणगे। जैसे यीशु मसीह चिराग में से निकलने वाला जिन्नी है, वो जिन्न को बोलोगे आप, बोलो मेरे आका क्या काम है। अरे भाई यीशु मसीह अद्भुत गुरु है, ब्रह्मांड का रचिता है। आपको मालूम गुरु दक्षिणा लेता है चेले से। अगर किसी को गुरु बनाना है ना तो उसको देने पड़ती गुरु दक्षिणा। ये गुरु दक्षिणा में पूरा जीवन मांग रहा है तेरा। ये तो सिखा लोगों को पाप, अधर्म, लुचपुना, गंदे काम, बदकारी, हरामकारी, जो गंदे काम कर रहे हो, मोबाइलों पे गंदी फिल्में, गंदी तस्वीरें देख रहे हो, ये गंदे काम त्यागो। ये कब करोगे प्रचार? यहोवा पवित्र है, अति पवित्र है, बिना पवित्रताई के कोई यहोवा को देख भी नहीं सकता। उसके संग संगति करना तो दूर की बात है, उस तक आपकी आराधना, इबादत पहुंच भी नहीं सकती जब तक पवित्रता ही नहीं आपके जीवन में। कब बताओगे लोगों को ये सच्चा प्रचार? कब ठगते रहोगे उन्हें? बरकतें आ रही हैं, बरकतें आ रही हैं। 2019 में ये झूठे नबी नबूवतें कर रहे थे, कह रहे थे 2020 बड़ी बरकतों का साल है, 2020 ब्रेक थ्रू का साल है, 2020 2020 विजन का साल है, 2020 में हेवन खुल जाएगा।
जाके देख लो फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे झूठे नबियों की नबूवतें। मेरी फेसबुक पे भी देखो, मैं 2019 में क्या बता रहा था। सजा आ रही है पृथ्वी पे, दंड आ रहा है यहोवा का। क्यों आ रहा है? क्यों दंड आता था इजरायलियों पे? सबसे पहली बात वो क्या करते थे, वो बालीमों की पूजा करते थे, बाल की और ग्रोब की, पेड़ों के नीचे। ये फर्टिलिटी गॉड्स हैं, स्त्री और पुरुष की पूजा है। और आकाश के गणों को पूजते थे, तारों की पूजा करते थे। यहोवा उनके ऊपर सजा भेजता था। वो यहोवा की बाचा को पाँव के नीचे कुचल देते थे। प्रभु कहता है, यू टर्न टू बालीम एंड यू वर्शिप under the trees, you worship the groves of the pagan, and you worship the stars and the sky. Therefore I will punish you. And what would God say unto you? I will send the sword, I will send famine, I will send the pestilence. प्रभु 3 बार कहता था। प्रभु कहता था मैं तलवार भेज रहा हूँ, प्रभु कहता था मैं अकाल भेज रहा हूँ, प्रभु भेज नोवल कोरोना वायरस, कोविड-19 सेंट बाय द लॉर्ड। कलीसिया के पाप की वजह से आती हैं ये। पर क्या कहता है दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7:14 में, प्रभु को दुनिया के लोगों से कुछ नहीं लेना देना, आपसे लेना देना है। आपने उसके बेटे का लहू पिया और मांस खाया है, आपकी वाचा है उसके साथ। आपने उसका लहू पी के और मांस खा के हरामकारी, जनाकारी, लुचपुना और संसार जैसे गंदे काम किए हैं। इसलिए परमेश्वर इज़राइल के कारण पृथ्वी की कौमों को सजा देता था। जब क्या करते थे वो लोग? यहोवा के कलाम को बदल देते थे। इस कलाम को वो लोग, फरीसी सदूकी, यीशु मसीह उनको रेप्रीमेंड करता है, बहुत कड़वे शब्द बोलता है। आप पहाड़ी उपदेश का पहला हिस्सा पढ़ते हो ना, महात्मा गांधी जी ने भी पढ़ा पहला हिस्सा। धन्य है वो जो शुद्ध मन है, धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो अंदर से खाली है। बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन ये 5 अध्याय है, 6 और 7 अध्याय यीशु मसीह का पहला ही सरमन है, ये पहला उपदेश है जो पहाड़ पे दिया। पढ़िए उसमें क्या कहता है। यीशु मसीह यहूदियों के झूठ की पोल खोलता है। यीशु मसीह फरीसियों सदूकियों का बैंड बजाता है। यीशु मसीह उन्हें बता रहा है, तुमने ये सच्चा कलाम नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम अपने पुरखों की रीतियां, अपने बुजुर्गों की परंपराएं सिखाते हो। तुम रब्बियों की व्यवस्था सिखा रहे हो लोगों को, यहोवा का सच्चा कलाम नहीं सिखा रहे। ये कलाम नहीं था उनके पास। वो कलाम की जो उनके रब्बियों ने, उनके बुजुर्गों ने खुलासे किए हैं, इंटरप्रिटेशन की, वो सिखाते थे। बाबल में जाके, बेबीलोन में उन्होंने काली किताब लिखी जिसे टैलमुड कहते हैं, जिसे गमारा कहते हैं, जिसे मिशना कहते हैं। यहोवा के कलाम को तोड़ मरोड़ दिया। वो ओरल लॉ को मानते थे, मुंह जवानी दी गई व्यवस्था को मानते थे, इसे नहीं मानते थे लिखित कलाम को। इसलिए यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मूसा को पढ़ते तो तुम मेरे पास आते, क्योंकि मूसा मेरी गवाही देता है। वो मूसा नहीं पढ़ रहे थे, नबियों की किताबें नहीं पढ़ते थे, वो अपने रब्बियों की इंटरप्रिटेशन। आज भी लोग यही कर रहे हैं ना, बड़े बड़े पादरियों के जो सेलिब्रिटी बनाए उन्होंने, उनके पीछे भाग रहे हैं। इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है। इधर सच्चा कलाम हो रहा है, देखो 30-35 लोग हैं। उधर भविष्यवाणियों की दुकान खुलेगी जो झूठी होंगी, 100% झूठी, और वो फ्रॉड लोग भविष्यवाणी करेंगे, हजारों जाएंगे उधर। और अंत जब होगा, देखिए ये कहाँ खड़े होंगे, प्रभु के शब्द सुनेंगे, दूर हो जाओ दुष्टों मुझसे, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि इन्होंने अपने आप से भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी की ताकि जेबें गर्म हो। मैंने वचन दिया इसके ऊपर कि वो पैसे के लिए भविष्यवाणी करते हैं, वो फाल करते हैं, फाल डालते हैं, वो बदरुओं के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं, झूठे नबी। प्रभु कहता है, अगर मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है वो अपने आप को खाली करे, दीन हो जाए और तौबा करे और अपने बुरे काम त्यागे और मेरी ओर मुड़े, तो मैं उनकी धरती को हरा भरा कर दूंगा। कोई पादरी नहीं ये कलाम दे रहा कि तौबा करो, प्रभु की ओर मुड़ो, गंदे काम त्यागो, आओ प्रार्थना करें। भविष्य डिक्री कर रहे थे, मैं कोरोना को जूती मार रहा हूँ, नहीं बजी ना जूती, मैं मार्च में भगा दूंगा कोरोना को,
अरे तू कौन है यार, क्या तेरी हस्ती है, क्यों ऐसे बोलते हो कि इबलीस तुम्हें छज्ज में डाल के छांटे। यहोवा के चरणों से लिपट जाइए, उसके चरणों से लिपट जाइए। हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से मेरे साथ ये कुछ वचन पढ़ लीजिए। मैं ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर कल आपको शिक्षा दूंगा, ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है जो हमने शुरू किया है। मैं चाहता हूँ आप राजाओं की पुस्तक निकालें, दूसरा राजा की पुस्तक, और उसका आप 3 अध्याय निकालिए, दूसरा राजा 3 अध्याय, और उसके 14 वचन से आप पढ़िएगा। 2 किंग्स चैप्टर नंबर 3 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 14। तो मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मैं ज़्यादा वर्सेस नहीं आपको पढ़ाऊँगा। परमेश्वर का दास एलीशा इज़राइल के लिए नबूवत करता है। परमेश्वर का दास एलीशा नबूवत किस समय कर रहा है? जब मोआब की सेना ने मोर्चा बांधा है। मोआब की बड़ी फौज इज़राइल के विरुद्ध में लड़ने आई है। तो एलीशा क्या लिखा है? एंड 13 वचन में लिख पढ़े, एंड एलीशा सेड अनटू द किंग ऑफ इज़राइल, चलो मैं 14 से पढ़ता हूँ। एंड एलीशा सेड, एज द लॉर्ड ऑफ होस्ट लिव्स बिफोर whom I stand, surely were it not that I respect the presence of Jehoshaphat king of Judah, I would neither look at you nor see you. तो यहूदा का धर्मी राजा है यहोशाफाट, और इज़राइल का दुष्ट राजा है। दोनों की आपस में दोस्ती है। इस पे मैंने आपको कई बार मैसेज दिया है। कई बार धर्मी लोग दुष्टों के संग संगति करते हैं, जिनके नतीजे ना केवल उन्हें भुगतने पड़ते हैं बल्कि उनकी औलाद को। समझ रहे हैं आप? यहोशाफाट की अहाब से जो दोस्ती थी उसका बहुत बुरा नतीजा निकला, क्योंकि इज़ाबेल शैतान की बेटी थी। उसका बाप इथबाल जो राजा था, टायर का, सूर का राजा था, और वो पुजारी भी था। वो बाल की पूजा और ग्रोब की पूजा और आकाश के तारों की पूजा की पद्धति को इसराइल में लेकर आई। इसराइल फर्टिलिटी गॉड की पूजा करता था, और इसराइल प्लैनेट्स की पूजा करता था, जिसने यहोवा को क्रोध दिलाया, और यहोवा का क्रोध इसराइल पे भड़का, और नॉर्दर्न किंगडम का सफाया हो गया। आपको मालूम, नॉर्दर्न किंगडम से श्राप 2008 में टूटा है मुकम्मल तौर पे। यहोवा परमेश्वर ने 7 गुना करके बढ़ाया नॉर्दर्न किंगडम के पाप को। 10 गोत्र नहीं लौटे जो साइरस राजा ने डिक्री दी यरूशलेम को बनाने की। जरूब्बाबेल, नेहमाया, एजरा, ये सब यहूदा के गोत्र से, यहूदा और बेंजामिन से निकले हैं। ऊपर के 10 गोत्र नहीं लौट के आए। डिक्री चारों की चारों साइरस ने यहूदा के गोत्र को दी। यहूदा में धर्मी राजा भी थे, यहूदा में यहोवा परमेश्वर की हैकल थी, यहूदा में यहोवा का खौफ डर कुछ कायम था। 20 के 20 राजा नॉर्दर्न किंगडम के दुष्ट थे। यहूदा के 20 राजा में से 12 राजा दुष्ट थे, 8 राजा कुछ धर्मी थे, 3 राजा मुकम्मल तौर पे प्रभु यहोवा के संग चले। हालेलुया। तो प्रभु का दास कहता है, मैं तेरी आदर नहीं करता, तू दुष्ट राजा है, पर तेरे साथ एक धर्मी बंदा है, मैं उसका आदर कर रहा हूँ। और वो प्रभु का बंदा क्या कहता है? प्रभु का बंदा इज़राइल को कहता है कि ऊपर जो पहाड़ है उसके अंदर, उस पहाड़ की साइडों पे आप एक खाई खोद लो, बड़ी खाई, और पानी नहीं है वहाँ पे, अकाल पड़ा हुआ है। और प्रभु का बंदा कहता है, बारिश भी नहीं पड़ेगी, मेह भी नहीं आएगा, बाढ़ भी नहीं आएगी, लेकिन कल सुबह यहाँ पे पानी होगा। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है, फॉर दस इज द लॉर्ड, यू शैल नॉट सी विंड, 17 वचन में, यू शैल नॉट सी विंड और रेन, येट दैट रेवाइन शैल बी फिल्ड विद वाटर टू यू, योर कैटल एंड योर बीस्ट ऑफ बर्डन में ड्रिंक। तुम्हारे जानवर मवेशियों के लिए पानी यहोवा भेजेगा उस खाई के अंदर। दिस इज बट अ लाइट थिंग इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, ही विल डिलीवर द मोआबाइट ऑल्सो इन टू योर हैंड्स। अब भविष्यवाणी सुने,
यहोवा का बंदा सच्चा नबी कह रहा है, यहोवा ये काम करेगा तुम्हारे लिए और यहोवा मुआबी सेना को तुम्हारे हाथ में दे देगा। और अगले दिन क्या हुआ, लिखा है, एंड यू शैल स्माइट देम, 19 वचन में तुम उनको मार दोगे सबको। अब 20 वचन पढ़ो, इन द मॉर्निंग व्हेन द सैक्रिफाइस वाज ऑफर्ड बिहोल्ड देयर केम वाटर बाय द वे ऑफ ईडोम एंड द कंट्री वाज फिल्ड विद वाटर। पानी आ गया अदोम से, सुपर नेचुरली पानी पानी भर गया उस रेवाइन में, नाले में। और अब क्या है, व्हेन ऑल द मोआबाइट हर्ड दैट द किंग हैड कम टू फाइट अगेंस्ट देम, all who were able to put armor, young and old, gathered and drew up at the border। वो सब इकट्ठे हो गए जब उन्होंने देखा कि इजराइल की सेना आ रही है। When they rose up early next morning and the sun shone upon the water, the Moabites saw the water across them as red as blood। ऊपर से सूर्य चमक रहा है, इजरायली उस पहाड़ पे हैं, नीचे तराई पे मोआबी हैं। सूर्य की किरणें पानी पे पड़ती हैं, मोआबियों को लगता है ये पानी नहीं लहू है, और वो क्या सोचते हैं, वो 23 वचन पढ़ें, एंड दे सेड दिस इज ब्लड, द किंग हैव श्योरली बीन फाइटिंग एंड हैव स्लेन वन अनदर, कि ये तो आपस में लड़के मर गए हैं। यहूदा की सेना और इज़राइल की सेना आपस में लड़के मर गई है। नाउ देन मोआब टू द स्पॉयल, आओ मोआबियो हम चलें और लूट का माल हासिल करें, ये सोचा उन्होंने। यहोवा ने अपने बंदे एलीशा के मुंह के कलाम के अनुसार पानी भेजा। यहोवा ने अपने बंदे एलीशा को भविष्यवाणी दी कि मोआबी तुम्हारे हाथ में कर दिए जाए। अब देखें आगे क्या होता है। अब यहाँ लिखा, बट व्हेन दे केम टू इजराइल द इजराइलाइट रोज अप एंड स्मोट द मोआबाइट सो दैट दे फ्लेड बिफोर देम एंड दे वेंट फॉरवर्ड स्लेइंग द मोआबाइट्स एज दे वेंट। उन्होंने सोचा कि वो मर गए सारे, खून आओ उनका माल लूट लें, लेकिन इजरायलियों ने उठ के मोआबियों को ऐसे मारा, वो भागे, वो उनको मारते गए। पढ़ें आगे 25-26 वचन, वो मारते गए उनको। 26 वचन देखें क्या लिखा यहाँ पे। 26 वचन में लिखा, एंड द किंग ऑफ मोआब सॉ दैट द बैटल वॉज अगेंस्ट हिम। मोआबी राजा देखता है कि लड़ाई बड़ी भयंकर उनके विरोध में। ही टुक विद हिम 700 swordmen टू ब्रेक थ्रू द किंग ऑफ ईडोम बट दे कुड नॉट। तो उसने 700 बंदा लिया कि हम उस पख्ती को तोड़ें, लेकिन वो 700 तलवार वाले बंदे उस पख्ती को तोड़ नहीं सके। तो देखिए आगे क्या लिखा 27 वचन में, ध्यान से पढ़ें 27 वचन, दूसरा राजा 3 का 27। देन ही मोआब्स किंग टुक हिज एल्डेस्ट सन। तब मोआब का राजा वापस लौटा और उसने अपने जेठे पुत्र को लिया, पहलौठे पुत्र को लिया, हु वॉज टू रेन इन हिज स्टेड, जिसको अपने बाप के सिंहासन में राज्य करना था अपने पिता के बाद। एंड ऑफर्ड हिम फॉर अ बर्ंट ऑफरिंग ऑन द वॉल इन द फुल व्यू ऑफ द हॉरिफाइड एनिमी किंग्स। उसने अपने जवान बेटे को लिया और दीवार पे अपने देवता के लिए बलि कर दिया। किसने? मोआब के राजा ने अपने बेटे को लेके अपने देवता के आगे बलि कर दिया। एंड देयर वॉज ग्रेट इंडिग्नेशन, रॉथ एंड बिटरनेस अगेंस्ट इजराइल। आपको मालूम इस राजा ने क्या किया? इस राजा ने देखा कि इजराइल जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। उसने अपने देवता के आगे ट्रेड कर दिया अपना बेटा, अपने इकलौते पुत्र को, जेठे पुत्र को, जो उसका भविष्य था, उसके सिंहासन का वारिस था, उसने ट्रेड कर दिया अपने बेटे को अपने देवता के आगे, बड़ी कुर्बानी दे दी। तो क्या हो गया यहाँ पे लिखा, एंड देयर वॉज ग्रेट इंडिग्नेशन, रॉथ एंड बिटरनेस अगेंस्ट इजराइल। हालेलुया। 27 वचन में लिखा है, बाजी इजराइल के विरुद्ध में हो गई। एंड दे एलाइज ऑफ जूडा एंड ईडोम विथड्रू फ्रॉम जोराम एंड रिटर्न टू देयर होम्स। इदोम और इजराइलियों की जो फौज लड़ने आई थी, जो लड़ाई जीत भी गई थी, जब उसने अपने बेटे को अपने देवता के आगे बलि किया, वहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि वो फौजें वापस मुड़ गईं। एलीशा ने कहा था तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तुम जंग जीत जाओगे, लेकिन वो काम हुआ नहीं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि इस राजा ने ट्रेडिंग फ्लोर पे जाके बड़ी बोली लगा दी। ट्रेडिंग फ्लोर पे बड़ा ट्रेड कर दिया इसने। आपको मालूम, मसीह लोग बहुत सारी बातों को समझते नहीं हैं कलाम की। कई बार अन्य जाति के लोग आपके खिलाफ विच क्राफ्ट करते हैं, टूना करते हैं, जादूगरी करते हैं, वो आपका बुरा चाहते हैं, वो
आपसे बड़े फ्लोर पे बिड करते हैं जाके। वो लोग सुबह 4 बजे उठ के लग जाते हैं, आप लोग तो सो रहे होते हो। आप तो उपवास नहीं रखते, प्रार्थना ही नहीं करते। अन्य जाति के लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, कई काम करते हैं। शैतानी ट्रेडिंग फ्लोर हैं, 7 शैतान के ट्रेड फ्लोर हैं जो नरक में खुलते हैं। यहोवा के भी ट्रेडिंग फ्लोर हैं। यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के आगे एक ग्लासी सी है, कांच का समुंदर है, वहाँ पे ट्रेड होती है। आपको मालूम हमारे देश में ट्रेडिंग कहाँ होती है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। हर दिन खुलता है सुबह 10 बजे, घंटी बजती है। वहाँ से पता लगता है इंडिया की इकॉनमी कैसे चल रही है। अगर शेयर गिरने शुरू हो जाएं, देश में हाहाकार मच जाता है, देश की जीडीपी नीचे आ जाती है, लोगों को खाने के लाले पड़ जाते हैं, लोगों की जॉब चली जाती है, बिजनेस चले जाते हैं, कारोबार चले जाते हैं, अमीर देश गरीब हो जाता है अगर स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाए। वो ट्रेडिंग फ्लोर हैं। स्वर्ग के भी ट्रेडिंग फ्लोर हैं जहां पे ट्रेड चलता है दिन और रात। प्रभु यहोवा 2 अध्याय में ट्रेडिंग के लिए कह रहा है। बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग फ्लोर हैं स्वर्ग के। प्रभु कहता है मुझसे मांग, मैं पृथ्वी की कौमें तुझे दूंगा। मैंने ये ट्रेड करना सीखा आज से 25-26 साल पहले। कौमें मांगी यहोवा से, गाड़ी बंगला कारें, ये चीज़ें नहीं मांगी मैंने, ये तो मुझे वैसे ही मिल जाती है सब कुछ। मैं वो मांगता हूं जो यहोवा कहता है मांग। 2 ज़बूर में यहोवा कहता है ज़मीन की कौमें मांग मुझसे, मैं तुझे दूंगा तेरी मिरास होने के लिए। जब मैं कौमें मांगता हूँ, मैं दुनिया के 100 से अधिक देशों में गया हूँ सेवा करने के लिए, दुनिया की अलग अलग कौमों को जाके कलाम सुनाता हूँ। ये सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा आदर है। यहोवा मुझे पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए भेजता है। हालेलुया। पृथ्वी की कौमें जब हम मांगते हैं, परमेश्वर पृथ्वी के अलग अलग मुल्क, अलग अलग देश, अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग कौमों के लोग हमें देता है। कॉकेशियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर और आइलैंडर, आइसलैंड के, ग्रीनलैंड के, स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के, वेल्स के, अफ्रीकन, घानेनियन और बैनन के, साउथ अफ्रीकन और अलग अलग जगह के, साउथ एशियन, एशियन, फार ईस्टर्न, अलग अलग लोग, कौमों के जब प्रभु हमें देता है, हम उन्हें लेके यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं। वो कौमें यीशु मसीह की मिरास हैं। लेकिन हमें ये प्रिविलेज देता है प्रभु, हम उनको जीत के यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं। जब वो कौमें यीशु मसीह के चरणों में पहुंचती हैं, यीशु मसीह को अपने सलीबी दुखों का इनाम मिलता है। तो बहुत ट्रेडिंग फ्लोर हैं, बड़ी गहरी शिक्षा है, मैं फिर इसे कंटिन्यू करूंगा। बहुत से लोग शैतान के ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेड करते हैं, कल इस पे सीखेंगे हम। शैतान के ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेड करना डेंजरस है। लेकिन ये भविष्यवाणी एलीशा की पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक बंदे ने बड़े ट्रेडिंग फ्लोर पे बोली दे दी जाके। आप क्या ट्रेड करते हो? बहुत सारे लोग मनी ट्रेड ही नहीं करते प्रभु के लिए। 10 रुपये देते हैं, वो सोचते हैं 10 इसलिए देते हैं, 2000 का इसलिए नहीं देते प्रभु को, क्योंकि वो सोचते हैं अगर 2000 का दूंगा तो प्रभु वापस नहीं लौटाएगा। 10 का देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। प्रभु को भिखारी मत ट्रीट करें। प्रभु को नहीं चाहिए आपका पैसा, ये पृथ्वी पे किंगडम चलाने के लिए चाहिए होता है। प्रभु को नहीं दे रहे आप, दे रहे हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु तो आपको कई गुना बढ़ा के लौटा रहा है। प्रभु को कर्जदार पता कब बनाते हैं हम? जब हम गरीबों को, अनाथों को और विधवा को देते हैं, तब प्रभु कहता है तुम मुझे लोन देते हो। विधवा को, गरीबों को, अनाथों को, लाचारों को, दुखियों को, दीनों को, उनकी सहायता करें। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए उपराला करें, विधवा की मदद करें, सहायता करें। ये कलाम कहता है। ये सिखाया नहीं जाता चर्चेज में, लेकिन वचन बता रहा है ये। ट्रेड करें यहोवा के फ्लोर पे। मैं यहोवा के पवित्र फ्लोर भी आपको बताऊंगा और शैतानी फ्लोर भी। हालेलुया। शैतानी फ्लोर पे ट्रेड मत करना। बहुत से मसीह लोग शैतानी फ्लोरों पे ट्रेड करते हैं। कल सुबह इसके ऊपर हम परमेश्वर के वचन में से जानकारी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।